Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and this video is for the students of ME English Literature, and today I come with one more novel, that is Mill on the Floors, written by George Eliot. George Eliot is the pseudonym of Mary Ann Evans. Mary Ann Evans wrote all her novels with the pseudonym George Eliot. And in this novel, she describes her own life. Actually, it is a autobiographical novel because Mary Ann Evans describes her own childhood and adolescent period through the character of this novel, Maggie. मैगी जो है उसे ही उस मैगी को जो लाइफ मैगी की जो लाइफ है उसे जॉर्ज इलियट ने उसी तरह से डिस्क्राइब की है जैसे कि उसकी खुद की लाइफ थी. एंड मिल ऑन द फ्लोर्स, हेयर इन दिस नॉवेल देयर इज़ वन मिल ऑन द रिवर फ्लोस. और ये मिल जो थी ये मैगी के फादर की मिल थी ऑन द फ्लोस रिवर. So let's start. This is autobiographical novel, autobiographical elements in Mill on the Floors. So let's start. Mill on the Floors is a masterpiece of memory. It is the experience of George Eliot's own childhood, relived by a woman approaching the maturity of her powers. तो ये जो नॉवेल है ये जॉर्ज इलियट का खुद का एक्सपीरियंस है चाइल्डहुड का और इसे रीलिफ्ट किया करता है. इसे रीलिफ्ट जो इस नॉवेल का कैरेक्टर है मैगी वो उसे रीलिफ्ट करती है. W.R. Nicole goes to the extent of saying, so long as George Eliot is read, wise readers will turn to the Mill on the Floors as the best, the truest and the most authoritative account of her own complex character. तो इसमें W.R. निकोल कहते हैं कि जितना इस जॉर्ज इलियट को पढ़ा जाता है एक जो रीडर है वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचता है, उसके कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के को अच्छे से समझता है और वो इस कंक्लूज़न पे पहुंचता है कि ये जो मिल ऑन द फ्लोर्स है ये द बेस्ट, द ट्रूएस्ट एंड द मोस्ट अथॉरिटेटिव अकाउंट है उसके अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का. द नॉवेल इज़ द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैरी एन इवेंस एंड द हिस्ट्री ऑफ मैगी टुलीवर इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैरी इवेंस ऑल्सो. Maggie Tulliver is the heroine of this novel, and through her character Mary Ann Evans describes her own life. Sir Leslie Stephen calls the first 200 pages of the novel a spiritual autobiography of the writer. George Eliot projects her own childhood through Maggie. She dwells unduly on Maggie's joy and sorrow. Like Mary Ann, Maggie was the youngest of the family. Isaac is the prototype of Tom. Isaac जो था he is the real brother of Mary Ann Evans और इस नॉवेल में Tom represents Isaac. टॉम जो है वो कैरेक्टर को फॉलो करता है आइसेक के कैरेक्टर को. प्रोटोटाइप मीन्स उसी टाइप का है आइसेक और टॉम जो है वो मीन्स आइसेक जो है टॉम उसके कैरेक्टर को प्रोटोटाइप करता है. मैगी इज़ द डीपली अटैच्ड टू टॉम एंड इन हर फाइनल कॉन्फ्लिक्ट शी इज़ मोस्ट डीपली हर्ट व्हेन टॉम टर्न्स अवे फ्रॉम हर. इस नॉवेल में ब्रदर और सिस्टर के लव को शो किया गया है. मैगी जो है टॉम से बहुत प्यार करती है, उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में क्या होता है टॉम से वो अलग हो जाती है. Her own childhood meant a great deal to George Eliot, and so she lingers on lovingly in describing the childhood of Tom and Maggie. क्योंकि इसमें जो चाइल्डहुड जो टाइम दिखाया गया है वो राइटर का ही है, जो मैरी एन इवेंस है वो अपनी ही लाइफ का इसमें शो कर रही है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लविंगली किस चीज़ पर लिंगर करती है
चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करने पे, चाइल्डहुड जो कि टॉम और मैगी का चाइल्डहुड है उसे डिस्क्राइब करने में ही लविंगली इस पर लिंगर वो करती हैं। लूसी डीन द टाइडी एंड प्रिटी कज़न इज़ बेस्ड ऑन क्रिस्टीना। क्रिस्टीना एक्चुअल में मैरी एन इवेंस की मदर है। जो लूसी डीन है शी इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ मैगी। While Mary Ann was plain and clumsy, Christina was pretty and neat and therefore a favorite with the grown up. जो क्रिस्टीना है वो एक नीट एंड क्लीन लेडी थी, प्रिटी थी, लेकिन जो मैरी है she was plain and clumsy. It is not for wrong to say that Maggie is the essential Mary Ann, and this close relationship between the author and her heroine gives the novel a warmth and the immediacy that her other works lack. एक मैरी एन और उसका जो क्लोज रिलेशनशिप है विद द कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल मैगी, तो ये रिलेशनशिप इस नॉवेल को एक वार्म देता है एंड इमीडिएसी, उसे एक इमीडिएसी देता है जो कि उसके अदर वर्क्स में नहीं मिलते. द सेटिंग ऑफ मैरी Anne's childhood is transfigured and suffused a little and used as the background in the mill on the floors. तो जो सेटिंग है इस नॉवेल की उसके चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करने की थोड़ा सा ट्रांसफिगर्ड उससे किया गया है और थोड़ा सा उसके एक्चुअल लाइफ को भी इसमें सफ्यूज्ड किया गया है और इसी चीज़ को मिला के इसका बैकग्राउंड मिल ऑन द फ्लोर्स का बैकग्राउंड तैयार किया है. Hence, we can see or imagine the passing of the daily coach, the mining village, the pale woman, and squalid children. Squalid means जो बच्चे डर्टी रहते हो, नीट एंड क्लीन टाइडी नहीं रहते. The brown canal, the chapels of dissent. Here also, the neglected stones mansions remote behind their walls, woods and scattered farms. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हैं जो कि मैरी एन इवेंस ने अपनी लाइफ में डेली रूटीन में वो देखती थी, वही मैगी के लिए यहाँ पर शो किया गया है. The various minor details in the novel are supplied by George Eliot's native district. द राउंड पूल, जो एक्टिविटी जो मैरी एन इवेंस अपने चाइल्डहुड में करती थी वही एक्टिविटी मैगी भी अपने चाइल्डहुड में करती है. द राउंड पूल टू विच मैगी गोज ऑन फिशिंग एक्सपेडिशन विद हर ब्रदर एंड द रेड डीप्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द राइटर्स नेटिव प्लेस टू द रीजन नियर सेट ओक्स वो जगह है जहाँ पर ये लोग रहते थे. तो ऐसा ही एक टाउन मैगी के लिए मैरी एन इवेंस ने इस नॉवेल में क्रिएट किया है जहाँ पे मैगी रहती है. इट सीम्स दैट जॉर्ज एलियट्स आइडेंटिफिकेशन विद हर हीरोइन वॉज टू complete for the novel to be more than a partial success. Maggie's childhood is wonderfully described. Because of this, we can accept her devotion to her brother. As I already told you, मैगी का अपने ब्रदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है. द कोरस एरोगेंट टॉम, और इसमें टॉम के बारे में बताया गया दैट टॉम इज़ अ कोरस एंड एरोगेंट पर्सन. Our doubts begin when Maggie reaches young womanhood. In contrast to Mary Ann, Maggie is triumphantly beautiful after having been ugly duckling. जो मैरी एन इवेंस है शी वॉज नॉट प्रिटी वुमेन, नॉट प्रिटी चाइल्ड, लेकिन जो मैगी है अर्लियर शी वॉज नॉट प्रिटी बट बाद में वो ट्रिम्फेंटली ब्यूटीफुल हो जाती है, पहले वो अगली डकिंग लगती है. Says A.E. Bakes, it is no doubt the poetic freedom with which she poured herself out in Maggie that renders this character the most magnetic of all her heroines. This is quotation line. The element of wish fulfillment
and the fear of self-exposure weaken. ये दो एलिमेंट्स हैं, वन इज़ द विश फुलफिलमेंट एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सेल्फ एक्सपोजर. ये चीज़ वीक करती है. जॉर्ज इलियट ग्रैस्प ओवर द मैटर. जॉर्ज इलियट का जो मैटर पे जो अपना ग्रैस्प है उस चीज़ को वो वीक करती है. द स्टीफन मैगी अलायंस इज़ नॉट कन्विंसिंग. स्टीफन और मैगी का जो अलायंस है दिस इज़ नॉट कन्विंसिंग. स्टीफन जो है, स्टीफन वॉज अर्लियर द सूटर ऑफ लूसी एंड बाद में वो मैगी से अटैच हो जाता है. दैट apart in her three-decker novel, she has no space to develop the character of Stephen and portray him effectively, for she had lingered too long on her own, nay, on Maggie's childhood. इस थ्री डेकर नॉवेल में जो मैरी एन इवेंस है स्टीफन के कैरेक्टर को इफ़ेक्टिवली डेवलप नहीं करती, लेकिन वो सारा टाइम किस पे लगाती हैं, मैगी के चाइल्डहुड की तरफ ही वो लिंगर्ड रहती हैं, क्योंकि चाइल्डहुड को डिस्क्राइब करके वो अपने आप की लाइफ को शो कर रही थी. द स्टोरी ऑफ टॉम एंड मैगी विच प्रोवाइड्स द अंडरलाइंग एंड ऑफन द explicit theme of the whole book is in spiritual and psychological essential. The story of Mary and Isaac Evans. Isaac, like Tom, was censorious, unimaginative, unforgiving, wounded. The only sensitive part of him, his respectability. तो इसमें जो आइसिक है, जैसा आइसिक था वैसे का वैसा टॉम दिखाया गया है. कैसा पर्सन है ये, सेंसोरियस, अनइमेजिनेटिव, अनफॉरगिविंग, वॉन्डेड, और एक ही चीज़ जो सेंसिटिव है दैट इज़ हिज रिस्पेक्टेबिलिटी. व्हेन मैरी एन फ्लॉटेड मीन्स डिसओबे करना. when Mary Ann flouted conventions by throwing in her lot with George Henry Leaves. जब मैरी जो है कन्वेंशंस को डिसओबे करती है, जब वो किसके साथ रिलेशन में आती है, जॉर्ज हेनरी लेविस के. दिस डियरली लव्ड ब्रदर वुड हैंस फॉरवर्ड हैव नथिंग टू डू विद हर. तो उनके ब्रदर और सिस्टर के रिलेशन में भी थोड़ा सा गैप आ जाता है. मैरी वॉज अटरली कास्ट ऑफ बाय आइसैक. पूरी तरह से आइसैक से वो कास्ट ऑफ मीन्स रिलेशन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म सा हो जाता है. एज मैगी वॉज बाय टॉम आफ्टर हर अफेयर विद स्टीफन. उसी तरह से जिस तरह से जब मैगी का अफेयर स्टीफन से होता है तो टॉम उससे अलग हो जाता है, उसी तरह से मैरी का अफेयर जब जॉर्ज हेनरी लिव्स से होता है तो आइसैक उससे अलग हो जाता है. इन द बुक George Eliot contrives the melodramatic reconciliation between the two, something which had not been possible in the real life. तो इस तरह से टू लाइफ्स को इन्होंने इस तरह से रिकॉन्सिल किया, ड्रामेटिकली रिकॉन्सिल किया है, जो कि एक रियल लाइफ में थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता. द कंक्लूजन ऑफ द बुक इज़ अ सब्जेक्टिव फैंटेसी सॉल्यूशन विच स्ट्राइक्स अ फॉल्स नोट. तो इसमें जो कंक्लूज़न होता है वो एक फैंटेसी है, एक सब्जेक्टिव फैंटेसी है, और हमें ऐसा भी फील होता है कि इसमें एक फॉल्स नोट भी स्ट्राइक करता है. बट द क्रिएटिव अचीवमेंट ऑफ द होल स्टैंड्स फर्म. लेकिन इसका जो क्रिएटिव अचीवमेंट है वो एकदम फर्मली स्टैंड करता है. जॉर्ज इलियट मेड नो सीक्रेट ऑफ द फैक्ट दैट द फिगर ऑफ मैगी वॉज ऑटोबायोग्राफिकल. Except towards the end, Maggie is viewed with a remarkable double vision, which is both subjective and objective at the same time. जॉर्ज ऑरवेल इस बात को बिल्कुल सीक्रेट नहीं रखती है कि वो एक ऑटोबायोग्राफिकल, मैगी जो है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर है, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो डबल विज़न रखती है. जो मैगी है वो डबल विज़न से हमारे सामने प्रेजेंट होती है, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं. वी लिव थ्रू ऑल द इमीडिएट इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड एंड अडोलसेंट मैगी, बट इट इज़ ऑल सीन फ्रॉम अ मैच्योर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एन ओवरऑल व्यू
of tolerant sympathetic irony। हम देखते हैं, हम पूरी इंटेंसिटी से उसकी फीलिंग को एडोलसेंस से लेके चाइल्डहुड से लेके एडोलसेंट तक पूरी इंटेंसिटी से फीलिंग को समझते हैं और एक मैच्योर पर्सपेक्टिव से हम इसे लेते हैं कि ये जो ओवरऑल व्यू अगर हम इसे देखें तो ये एक सिंपैथेटिक आयरनी है। इन शॉर्ट, द मिल ऑन द फ्लोर्स इज अ ग्रेट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। एट लीस्ट इन द अर्लियर looks, she has poured more of herself into this novel so that none of her other works appeals with the same directness to the personal sympathies of her readers। तो जो ये नॉवेल है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल तो है ही, एटलीस्ट इन द अर्लियर लुक्स में तो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, लेकिन इसने अपने आप को पूरी तरह से इस नॉवेल में डाला है जितना कि किसी और वर्क में उसने ऐसा नहीं किया, ताकि रीडर्स की डायरेक्ट सिंपैथी उसे मिल सके। तो इस तरह की चीज़ उसने अदर नॉवेल्स में नहीं की, सिर्फ इसी में की है। A.C. Watt is right when he says it is David Copperfield or Pendennis among the products of her literary genius। तो A.C. Watt कहते हैं कि मैरी एन इवेंस के जो जितने भी लिटरेरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये डेविड कॉपरफील्ड और पेंडेनिस के बीच में ही आता है। ओके, दिस इज completed and I hope you will like this, and if you like then press the button like, subscribe, and you should also put comments regarding these questions. Thank you.